Nephrotic syndrome feature massive proteinuria 3.5 gram per day or more, hypoalbuminemia less than 3 gram per deciliter, generalized edema, hyperlipidemia and lipiduria. Etiology: primary glomerular diseases like minimal change disease, membranous nephropathy, FSGN, and MPGN. Systemic diseases like diabetes mellitus, amyloidosis, SLE, infections like hepatitis B and C. Pathogenesis: edema, increased permeability of the glomerular capillary wall for protein causes massive proteinuria, leading to hypoalbuminemia. Decreased plasma oncoating pressure results in development of edema, generalized and pitting edema. Hyperlipidemia, increased blood cholesterol Tg, VLDL, LDL levels due to increased synthesis, decreased catabolism, or abnormal transport of lipids. Hyperlipidemia leads to lipiduria. Infections: loss of immunoglobulin in urine increases the risk of developing staphylococcal and pneumococcal infection. Thrombotic complications like loss of endogenous anticoagulants in urine causes increased risk of thrombotic complications. So nephrotic syndrome, सपोज नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो एम है, एन के बाद एम आता है तो एम से मैसिव प्रोटीन यूरिया, एन के बाद एम आता है तो एम से मैसिव प्रोटीन यूरिया, ई से इडमा। नेफ्रोटिक के एन के बाद एम होता है तो मैसिव प्रोटीन यूरिया, ई से इडमा। पी से प्रोटीन लॉस मतलब हाइपर एल्बुमिनिया होगा, एल्बुमिन विल बी लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर। H से hyperlipidemia, the liver tries to compensate for protein loss by making more fats. प्रोटीन लॉस हो रहा है और लिपिड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो P से प्रोटीन लॉस हो गया जिसके कारण हाइपर एल्बुमिनिया होगा, H से हाइपरलिपिडीमिया, R से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. So there is increased risk of infection because of the loss of immunoglobulin in urine. Immunoglobulins जो है वो यूरिन में लॉस हो जा रहे हैं जिसके कारण there is risk of infection. O से oval fat bodies, T से thrombotic complications. Thrombotic complications क्यों होगा? क्योंकि जो anticoagulants है वो यूरिन में लॉस्ट हो जा रहे हैं तो उसके कारण thrombotic complication होगा. आई से इंक्रीज्ड लिपिड दैट इज हाइपरलिपिडीमिया. क्या क्या इंक्रीज होता है? इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, VLDL और LDL, ठीक है। और नेफ्रोटिक के सी से कॉजेज देख लेते हैं, कॉजेज या ईटियोलॉजी। प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस में क्या क्या आ गया? मिनिमल चेंज डिजीज, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, FSGN एंड MPGN. प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ में मिनिमल चेंज डिजीज़, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, FSGN और MPGN. सिस्टमिक डिजीज़ में डायबिटीज़ मेलाइटस, एमिलोइडोसिस, SLE और इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस B एंड C. तो नेफ्रोटिक का जो N होता है, N के बाद M होता है तो M से मैसिव प्रोटीन यूरिया, E से इडिमा, P से प्रोटीन लॉस that will result in hypoalbuminemia less than 3 gram per deciliter. H से hyperlipidemia के कारण लिपिड्यूरिया होगा. R से रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस क्योंकि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो यूरिन में लॉस्ट हो जाता है. O से ओवल फैट बॉडीज इन द यूरिन, ठीक है, दैट इज लिपिड्यूरिया. ओवल फैट बॉडीज इन द यूरिन दैट इज लिपिड्यूरिया. T से thrombotic complications because of the loss of endogenous anticoagulants.
टी हो गया, टी से थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स। आई से इंक्रीज्ड, क्या क्या इंक्रीज रहता है, वीएलडीएल, एलडीएल, टीजी और कोलेस्ट्रॉल। इंक्रीज्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, वीएलडीएल, एलडीएल और, तो इंक्रीज्ड लेवल, आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल, टीजी, वीएलडीएल एंड एलडीएल। ठीक है, फिर सी से कॉजेज। कॉजेज में दो कॉज होता है, प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस लाइक मिनिमल चेंज डिजीज, एफएसजीएन, एमपीजीएन एंड मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। सिस्टमिक डिजीजेस लाइक diabetes, amyloidosis, SLE and infections like hepatitis B and C. So features हो गया, massive proteinuria 3.5 gram per day or more, hypoalbuminemia less than 3 gram per deciliter, generalized edema, hyperlipidemia and lipiduria. etiology दो टाइप का होता है, पहला है प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीजेस, ठीक है, जिसका निमोनिक है मिनी मेम्ब्रेन फेल्स एमपी। मिनी मेम्ब्रेन फेल्स एमपी, मिनी स्टैंड्स फॉर मिनिमल चेंज डिजीज, मेम्ब्रेन फॉर membranous nephropathy, fails, that is FSGN, and MP is MPGN. Primary glomerular disease causing nephrotic syndrome are minimal change disease, membranous nephropathy, FSGN and MPGN. Then systemic diseases, सिस्टमिक डिजीजेस का निमोनिक है डैश, डी फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस, ए फॉर एमिलोइडोसिस, एस से एसएलई, एच से हेपेटाइटिस बी एंड सी। सिस्टमिक डिजीजेस का निमोनिक है डैश, डी से डायबिटीज़ मेलाइटस, ए से एमिलोइडोसिस, एस से एसएलई, एच से हेपेटाइटिस बी एंड सी। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में 4 पॉइंट है। पहला इडिमा। इडिमा क्यों होता है, क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल का परमेबिलिटी इंक्रीज है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल का परमेबिलिटी ज़्यादा होता है, जिसके कारण मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा। प्रोटीन्स के लिए उसका परमेबिलिटी इंक्रीज होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल का, ठीक है, जिसके कारण मैसिव प्रोटीन यूरिया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में लॉस होगा, जिसके कारण हाइपोएल्बुमिनिया होगा, एल्बुमिन का लेवल कम होगा, तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। दिस विल रिजल्ट इन इडिमा विच कैन बी जनरलाइज्ड और पिटिंग। तो हाइपोएल्बुमिनिया क्यों होता है, मैसिव प्रोटीन लॉस के कारण। मैसिव प्रोटीन लॉस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, तो इसके कारण जनरलाइज्ड और पिटिंग एडिमा होता है। सेकेंड पॉइंट इज हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो लिवर कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा लिपिड बनाएगा। सो क्या क्या इंक्रीज होता है, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है, इन सब का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, कैटाबॉलिज्म डिक्रीज होता है और एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। सिंथेसिस ज़्यादा होगा, कैटाबॉलिज्म कम होगा और एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट होगा। हाइपरलिपिडीमिया के कारण लिपिड यूरिया भी होता है। इन्फेक्शंस, जो यूरिन है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स लॉस होंगे, जिसके कारण स्टेफाइलोकोकल और नीमोकोकल के इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। कौन कौन सा इन्फेक्शन का रिस्क इंक्रीज होता है, स्टेफाइलोकोकल और नीमोकोकल। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एंडोजीनस एंटीकोगुलेंट्स इन द यूरिन causes increased risk of thrombotic complications. So this was about nephrotic syndrome. फीचर्स, फिर ईटियोलॉजी में दो होता है, प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ और सिस्टमिक डिजीज़, जिसका निमोनिक है डैश। पैथोजेनेसिस में एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, इन्फेक्शंस और थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस को एक्सप्लेन करना है।